అడుచుకున్నాను చాలు. To all of you, welcome to Mehfil-e-Adab. This is a slightly adventurous, slightly courageous, slightly unusual program that we have put together. This really sort of came up as a thought some weeks ago when we watched the enthusiasm with which our students at IIT were learning Urdu poetry and Urdu script from our esteemed guest here, Ms. Hamida Banu Chopra. Hamida is from UC Berkeley. She's been teaching Urdu there for some years. She's originally from Udaipur. She studied MA in philosophy here, then went on to study at Aligarh Muslim University, went and settled down as a diasporic citizen in the United States for some years. And through our fortune, we managed to get her to come and do a course in Urdu script and Urdu poetry with our IIT students. I joined IIT about 2.5 months ago, and I came to know about this course, and I became unofficially one of her students. And so the program that you see today, really speaking, comes as a product of these very various kinds of mutual interests that all of us had in the richness of Urdu language, and in the fact that that although this is an institute of technology, there is a huge role that humanities and social sciences play in this institute, and it's a role that we are hoping to enhance in the years to come. We are hoping that through the inputs that students get from literature, poetry, anthropology, sociology, and so on, they would also be able to bring to bear a richer and more nuanced understanding of life and not just technology. So with that view in mind, we are trying various kinds of experiments, of which this is something that we are sort of particularly proud of. So let me welcome you to today's program and introduce to you, please give with a round of applause for Ms. Hamida Banu Chopra, our guest of today. We also have in our midst some very established poets from Ahmedabad. I have with me Sadiq Noor Pathan, Tanveer Ejaz Siddiqui, who works with Indian Express. I have Jayant Parmar, who's again an established Urdu poet. And we also have with us our students who learned poetry with Hamida and who would be reading out some of their poems today. Some of them would be singing and some of them would be reading out the poems. So without much ado right now, I want Hamida to take over and take you to an extremely rich, interesting evening with Urdu literature. Over to you, Hamida. मेरे हक में ये एहसान किया है, मेरे मालिक ने मेरे हक में ये एहसान किया है, खाक नाचीज़ था सो मुझे इंसान किया है। मेरे खालिक ने मेरे हक में ये एहसान किया है, खाक नाचीज़ था सो मुझे इंसान किया है, और उसके फ़रोग़ हुस्न का झमके है सब में नूर। शेर मुलाज़ा। उसके फ़रोग़ हुस्न का झमके है सब में नूर, शम्मे हरम होया के दिया सोमनाथ का, शम्मे हरम होया के दिया सोमनाथ का। सो ख़ातीन व हज़रात, मीर तक़ी मीर के नशार के साथ आज की इस महफ़िल में मैं भी आप सबका इस्तक़बाल, आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि जो गुजरात की ज़मीन पर आप सबसे मुखातिब होने का मौका मिला है। आज की महफ़िल का आगाज़ गुजरात के और उर्दू के बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर वली गुजराती के कलाम से करती हूँ। आप यहीं पर इसी शहर में आप मदफून हैं, आपकी कब्र यहीं पर है।
वली गुजराती के वली दक्खिनी के नाम से भी मशहूर हैं, और बहुत से लोगों का कहना है कि वो औरंगाबाद में पैदा हुए थे, लेकिन ज़्यादातर का ये है कि वो गुजरात में है। और ख़ुद उन्होंने ये कहा है कि गुजरात के फिराक सूं हुए खार खार दिल, है ना, खार खार टुकड़े टुकड़े चुभने वाला। गुजरात के फिराक सूं है खार खार दिल, हिजरत से दोस्ता के हुआ जी मेरा गुदाज, लेकिन हजार शुक्र वली हक के फैसूं, फिर उसके देखने का है उम्मीदवार दिल। सो लीजिए मैं एक गज़ल वली की पेश करती हूँ, और क्योंकि ज़ुबान बहुत पुरानी है, 400 साल हो गए वली को, तो इस वजह से वो आज की जो हमारी ज़ुबान है वो ज़ुबान नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि किस कदर प्यार और मोहब्बत से उन्होंने ये गज़ल कही है। आम तौर से उस ज़माने में भी और अभी भी, क्योंकि हम दो तरह के इश्क़ हैं, इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी। एक वो जो खुदा से मोहब्बत, भगवान से मोहब्बत की जाती है, जैसे मीरा का है, तुलसी का है, कबीर का है, और एक ये है कि दुनिया वालों से मोहब्बत की जाती, वो भी बहुत ज़रूरी है। सो ये उनके ना उसमें से किया हुआ है। सो मत गुस्से के शोलों से जलते को जलाती जा, मत गुस्से के शोलों से जलते को जलाती जा, टुक महर के पानी से ये आग बुझाती जा, है ना। मत गुस्से के शोलों से जलते को जलाती जा, टुक महर के पानी से ये आग बुझाती जा, इस रैन अंधेरी में मत भूल पड़ूं तिससे, है ना, कि इस अंधेरी रात में मैं कहीं भूल ना जाऊं, कहीं भटक ना जाऊं। इस रैन अंधेरी में मत भूल पड़ूं जिससे, टुक पाँव के बछुओं की आवाज़ सुनाती जा, कुछ टुक पाँव के बिछुओं की आवाज़ सुनाती जा, और मुझ दिल के कबूतर को पकड़ा है तेरी लट ने, है ना। आम तौर से कोयल और ना बुलबुल और इसकी बातें की जाती है, और वली देखो किसका नाम ले रहे हैं, कबूतर का ना। खामोश बेचारा सीधा साधा जो ना जानवर है। सो बहुत ही प्यारा शेर है कि मुझ दिल के कबूतर को पकड़ा है तेरी लट ने, ये काम धर्म का है, टुक इसको छुड़ाती जा, मुझ दिल के कबूतर को पकड़ा है तेरी लट ने, ये काम धर्म का है, टुक उसको छुड़ाती जा, और तुझ इश्क में जल जल कर सब तन को किया काजल, जल जल के काम, तुझ इश्क में जल जल कर सब तन को किया काजल, ये रोशनी अफजा है आँखों से लगाती जा, ये रोशनी अफजा है आँखों से लगाती जा, और तुझ घर की तरफ सफदर आता है वली दाइम, मुश्ताक दर्शन का टुक दर्श दिखाती जा, मुश्ताक दर्शन का टुक दर्श दिखाती जा, मत गुस्से के शोलों सूं जलते को जलाती जा, टुक महर के पानी सूं ये आग बुझाती जा। शुक्रिया। क्योंकि वली गुजराती के शहर में हूँ, सो चंद अल्फाज उनकी शायरी के बारे में आपसे कहना चाहूँगी कि आपको वली की शायरी में कोई बहुत बड़ा फ़लसफ़ा नहीं मिलेगा, और उन्होंने कोई ज़िंदगी की गुत्थियों को भी सुलझाने की कोशिश नहीं की जैसा कि आम तौर से किया जाता है। उनकी शायरी हुस्न के आसपास ही मंडलाती रहती है, और वो हुस्न दोनों हुस्न है, हुस्न दुनियावी और हुस्न खुदा और भगवान का भी। ऐसा लगता है कि वली का महबूब हर वक्त उनकी आंखों के सामने रहता है, और वो दीवाना वार उससे मुखातिब होते रहते हैं। कभी कहते हैं तुझ लब सूं, तुझ नैन सूं, तुझ मुख सूं, तुझ जुल्फ सूं, सो ना यही हर वक्त कहते ही कहते रहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह के अशार वली के जमा करें तो कोई भी मुसव्विर, कोई भी आर्टिस्ट वली के महबूब की एक खूबसूरत तस्वीर बना सकता है। सो ये शेर मुलाज़ा फरमाइए जो वली के हैं कि सजन तुम मुख सती खोलो निकाब आहिस्ता आहिस्ता, सजन तुम मुख सती ने खोलो निकाब आहिस्ता आहिस्ता, कि जूं गुलसू निकलता है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता, जूं गुलसू निकलता है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता, और हज़ारों लाखों खूबा में सजन मेरा चले यूं, है ना, हज़ारों लाखों खूबा में सजन मेरा चले यूं, सितारों में चले जीवन, सितारों में चले जीव महताब आहिस्ता आहिस्ता, है ना, हज़ारों लाखों खूबा में सजन मेरा चले यूं, सितारों में चले जीव महताब आहिस्ता आहिस्ता। सो आइए हम भी अपनी महफिल को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते हैं। अब आपके सामने उर्दू क्लास के कुछ तुलबा, कुछ विद्यार्थी मुख्तलिफ शोरा का कलाम पेश करेंगे, उन्होंने उर्दू क्लास में पढ़ा है।
इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है और ख़ास तौर से तलफ़्फ़ुज़ में ख़ै और गायन और जो कि बहुत मुश्किल होते हैं उनकी उन्होंने बहुत कोशिश की है साफ़ करने की। लेकिन अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो मैं अहले मजलिस से भी और अहले ज़ुबान से भी गुजारिश करूँगी कि उसको दरगुजर करें और उनकी मेहनत की तरफ निगाह करें। तो सबसे पहले मैं स्वाति से गुजारिश करती हूँ कि आज मैं बहादुर शाह जफर जो कि आखिरी मुगल बादशाह थे उनकी एक गज़ल पेश करूँगी। और इससे पहले कि मैं गज़ल पेश करूँ, एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि मेरे जो दादाजी हैं वो बहुत खूब उर्दू जानते हैं, लेकिन मैंने ना कभी उर्दू पढ़ी और ना कभी इससे पहले सीखी थी। तो हमारे बीच बातचीत के बस वही लिमिटेड से मौजू रहते थे, लेकिन वाकई अब हमारे बीच एक नया ही बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है और जिसके लिए मैं मैम और इस उर्दू क्लास की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो जो गज़ल है वो है, दिया अपनी खुदी को जो हमने उठा, वो जो पर्दा सा बीच में था ना रहा। यहाँ खुदी से मुराद ईगो की है और एक बार जब हम अपना ईगो हटा देते हैं, मिटा देते हैं, तो जो डिफरेंसेस पैदा करने वाले पर्दे होते हैं वो अपने आप हट जाते हैं। तो मैं इस गज़ल को तरन्नुम से पढ़ना चाहूँगी। दिया अपनी खुदी को जो हमने उठा, वो जो पर्दा सा बीच में था ना रहा। दिया अपनी खुदी को जो हमने उठा, वो जो पर्दा सा बीच में था ना रहा। रहा पर्दे में अब ना वो पर्दा नशी, कोई दूसरा उसके सिवा ना रहा। ना थी हाल कि जब हमें अपने खबर रहे, देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। दिया अपनी खुदी को जो हमने उठा, वो जो पर्दा सा बीच में था ना रहा। हमें सावरो वादा के देने में अब करे देर जो साख, तो हाय गजब के ये अहदे निशात, ये दौरे तरब न रहेगा जहां में सदा ना रहा। उसे चाहा था मैंने कि रोक रखूं, उसे चाहा था मैंने कि रोक रखूं, मेरी जान भी जाए तो जाने न दूं, कि लाख फरेब हजार फसूं, ना रहा ना रहा ना रहा ना रहा। जफर आदमी उसी को ना जानिएगा, हो वो कैसा ही साहिब फहमो ज़का। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, हो वो कैसा ही साहिब फहमो ज़का। जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। उसे चाहा था मैंने कि रोक रखूं, मेरी जान भी जाए तो जाने न दूं, कि ये लाख फरेब हजार फसूं, ना रहा ना रहा ना रहा ना रहा। आज मैं आपके सामने अल्लामा इकबाल साहब की एक नज़्म पेश करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं ये नज़्म पेश करूँ, मैं बताना चाहता हूँ जैसे कि उर्दू ज़बान मेरी पहली ज़ुबान है, लेकिन शायद कहीं दुनियावी झमेलों में मैं इससे बहुत दूर हो गया था। तो बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका, सारी क्लास का, कि मैं इसके दोबारा करीब आ सका। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा ये नज़्म मैं आपके सामने अच्छे से पढ़ सकूँ। ये दिस पोएम इज़ बेसिकली अ मैसेज दैट गॉड वांट्स हिज एंजल्स टू टेक टू द वर्ल्ड. It is a message to the oppressed,
to raise their voices against injustice. It is a message to the religious leaders to abstain from creating gaps between him and his believers. कैसे है? उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काफ़े उम्रा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोजे यकीन से, कुंजिश के फरमाया को शाही से लड़ा दो। सुल्तानिये जमहूर का आता है ज़माना, सुल्तानिये जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्श कुहन तुमको नज़र आए मिटा दो। जिस खेत से दहका को मयस्सर नहीं रोटी, उस खेत के हर खोशे गुंदुम को जला दो। क्यों खालिको मखलूक में हायल रहें पर्दे, पैराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। क्यों खालिको मखलूक में हायल रहें पर्दे, पैराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। अब ये आखिरी शेर ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइएगा। मैं नाखुशो बेजार हूँ मरमर की सिलों से, मैं नाखुशो बेजार हूँ मरमर की सिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो। Just to explain in this last stanza, God says that He is tired of all the grand mosques and temples that we have created in His name. All He wants nothing but a place of worship built with a true heart. एक आखिरी शेर जो मैंने बहुत पहले सुना था अपने वालिद साहब से, मुझे बहुत पसंद है, मेरे बहुत करीब है, अल्लामा इकबाल साहब का ही है। मस्जिद तो बना ली दम भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली दम भर में ईमा की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी हो न सका। भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़गान भी हो, तुम सैयद भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़गान भी हो, ये तो बताओ क्या तुम मुसलमान भी हो। मैं आपके सामने ब्रिज नारायण चकबस्त की गज़ल पेश कर रही हूँ। ये हमने अपनी उर्दू क्लास में पढ़ी थी और ये गज़ल मुझे बहुत प्यारी लगती है क्योंकि चकबस्त ने बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में अपने दिल की उन्हें जो बताना था उन्होंने इतने सीधे और सरल शब्दों में उन्होंने बता दिया है। तो गौर फरमाइएगा। दिल ही की बदौलत रंज भी है, दिल ही की बदौलत राहत भी, ये दुनिया जिसको कहते हैं दोज़ख भी है और जन्नत भी। दिल ही की बदौलत रंज भी है, दिल ही की बदौलत राहत भी। अरमान भरे दिल खाक हुए और मौत के तालिब जीते हैं, अंधेर पे इस दुनिया की हमें आती है हंसी और रिक्कत भी। दिल ही की बदौलत रंज भी है, दिल ही की बदौलत राहत भी। जब तक है जवानी का आलम, क्या ऐश की मस्ती रहती है, जब पीरी मौत की लाई खबर, फिर जुहद भी है और तात भी। या खौफ खुदाया खौफ सकर है दो ही बयां तेरे वाइज, अल्लाह के बंदे दिल में तेरे है सोज़े गुदाज मोहब्बत भी। अल्लाह के बंदे दिल में तेरे है सोज़े गुदाज मोहब्बत भी। गिरते ही ज़मी के दामन में ए तिफ़्ल ये रोना धोना क्या, दुनिया में अगर तू आया है या रंज भी है और राहत भी। दिल ही की बदौलत रंज भी है,
दिल ही की बदौलत राहत भी ये दुनिया जिसको कहते हैं, दोज़ख भी है और जन्नत भी। बात करता हूँ। ख़वातीनो हज़रात, आज बचपन से ही मैं उर्दू ज़ुबान से मेरा बड़ा लगाव था, लेकिन मैं उसे सीख नहीं पाया। अपनी इस उर्दू क्लास के ज़रिए मैं अपनी पहली कुछ ये गज़ल पेश करने का मौका मिला है, इसका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और आज मैं आपके सामने उस्ताद ज़ौक़ की एक गज़ल पेश कर रहा हूँ। इसका तरन्नुम मैंने खुद ही बनाया है और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बर्दाश्त कर पाएंगे। लाई हयात आए, कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए, ना अपनी खुशी चले। लाई हयात आए, ग़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए, ना अपनी खुशी चले। बेहतर तो है यहीं के दुनिया से न दिल लगे, पर क्या करे जो काम ना बेदिल लगी चले। कम होंगे इस बिसात पे हम जैसे बदकिमार, जो चाल हम चले वो निहायत बुरी चले। लाई हयात आए, हो उम्र खिज़र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। लाई हयात आए, दुनिया ने किस करा है फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। लाई हयात आए, नाज़ा न कर खिरद पे, नाज़ा न कर खिरद पे, जो होना है वो ही हो। दानिश तेरी न कुछ मेरी, दानिशवरी चले। लाई हयात आए, जाते हवाए शौक में इस चमन से ज़ौक़, अपनी बला से बाद सबा अब कभी चले। लाई हयात आए, कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए, ना अपनी खुशी चले। शुक्रिया। फैकल्टी मेंबर्स और अहले मजलिस, आप सभी ने नज़्में और गज़लें सुनी। अब मैं आपके सामने मौलाना आज़ाद की नसर का एक छोटा सा टुकड़ा पेश करने जा रही हूँ, जो हमने इस उर्दू क्लास में पढ़ा और मुझे बहुत पसंद आया। हम में से ज़्यादातर लोग मौलाना आज़ाद को सिर्फ़ एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में जानते हैं। बहुत ही कम लोग उनकी ज़िंदगी के इस पहलू से वाकिफ़ हैं कि वो एक आज़ाद विचारों वाले राइटर थे और उनका पेन नेम आज़ाद था। इस नसर में नज़्म की सी रवानी है, इसीलिए उर्दू के एक मशहूर शायर हसरत मोहानी, जिन्हें हम उनकी गज़ल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना के लिए याद करते हैं, कुछ इस तरह से कहते हैं। जब से सुनी है आज़ाद की नसर, हसरत अपनी नज़्म में मज़ा ना रहा। ये नसर मौलाना आज़ाद की किताब गुबारे खातिर से ली हुई है,
जो उन्होंने उस वक्त लिखी जब वो आज़ादी की लड़ाई के लिए अहमदनगर जेल में थे। सो लीजिए पेश करती हूँ गुबारे खातिर से एक छोटा सा टुकड़ा। यहाँ एक हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक फलसफी, एक जाहिद और एक साधु का खुश्क चेहरा बनाकर हम इस मरक्के में खप नहीं सकते जो नक्काशे फितरत के मुकलम ने यहाँ खींच दिया है। इस मरक्के में सूरज की चमकती हुई पेशानी, चांद का हंसता हुआ चेहरा, सितारों की चशमक, दरख्तों का रस, परिंदों का नगमा, आवे रवा का तरन्नुम और फूलों की रंगीन अदाएं अपनी अपनी जलवा तराजियां रखती हों। इसमें एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ जगह पाने के यकीनन मुस्तहिक नहीं हो सकते। फितरत की इस बज़्म निशात में तो वही ज़िंदगी सज सकती है जो एक दहकता हुआ दिल पहलू में और चमकती हुई पेशानी चेहरे पे रखती हो। चांदनी की तरह निखर कर, सितारों की तरह चमक कर, फूलों की सफ़ में फूलों की तरह जगह निकाल ले सकती हो। मुसीबत सारी ये है कि खुद हमारा दिल और दिमाग ही गुम हो जाता है। हम अपने से बाहर सारी चीज़ें ढूंढते रहेंगे मगर अपने खोए हुए दिल को कभी नहीं ढूंढेंगे। हालांकि अगर उसे ढूंढ निकाले तो ऐशो मसरत का सारा सामान इस कोठरी में के अंदर सिमटा हुआ मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना आज़ाद के बारे में हमने बहुत पढ़ा था क्लास में और ये मुझे शुरू से कहती थी कि मुझे ये हिस्सा बहुत ही पसंद आया। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो महफिल अदब है, ज़रूरी नहीं है कि मुशायरा है। सो उन्होंने जसारत की और ये टुकड़ा उस गुबारे खातिर साहब के सामने पेश किया। बहुत अच्छी किताब है, जब भी किसी को मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। अब हमारा आखिरी तालिब इल्म आपके सामने एक गज़ल पेश करने लगा। आदित्य का उन्वान खूबसूरत मोड़ है। ये साहिर लुधियानवी की है जो हमने अपनी उर्दू क्लास में पढ़ी थी। इसको एक फिल्म में गाने की तरह इस्तेमाल किया गया है। मैं इसी अंदाज में इसे पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ है मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर
छोड़ना अच्छा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। शुक्रिया। में ना पहुंचे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अपने सब बच्चों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करके और आज आपके सामने ये सब पेश किया। बहुत फ़ख्र है मुझे इन लोगों पे, और ख़ास तौर से इस वक्त जबकि इनके सर पे इम्तिहान की है ना तलवार लटक रही है, ऐसे में वक्त निकाल के और इतना सब पढ़ना, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इन बच्चों की। और वाकई इन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत सीखा भी और बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आप सबका। नज़्म इस तरह से है कि एक नन्ही मुन्नी सी पुजारन, पतली गर्दन पतली बाहें, भोर भये मंदिर आई है, आई नहीं है माल आई है। एक नन्ही मुन्नी सी पुजारन, पतली गर्दन पतली बाहें, भोर भये मंदिर आई है, आई नहीं है माल आई है। वक्त से पहले जाग उठी है, नींद अभी आँखों में भरी है, ठोरी तक लट आई हुई है, यूं ही सी लहराई हुई है। वक्त से पहले जाग उठी है, नींद अभी आँखों में भरी है, ठोरी तक लट आई हुई है, यूं ही सी लहराई हुई है। आँखों में तारों की चमक है, मुखड़े पे चांदी की झलक है। आँखों में तारों की चमक है, मुखड़े पे चांदी की झलक है। कैसी सुंदर है क्या कहिए, नन्ही सी सीता कहिए। आँखों में तारों की चमक है, मुखड़े पे चांदी की झलक है। कैसी सुंदर है क्या कहिए, नन्ही सी एक सीता कहिए। धूप चढ़े तारा निकला है, पत्थर पर एक फूल खिला है। चांद का टुकड़ा फूल की डाली, कमसिन सीधी भोली भाली। कान में चांदी की बाली है, हाथ में पीतल की थाली। कान में चांदी की बाली है, हाथ में पीतल की थाली है। मन में लेकिन ध्यान नहीं है, पूजा का कुछ ज्ञान नहीं है। कान में चांदी की बाली है, हाथ में पीतल की थाली है। मन में लेकिन ध्यान नहीं है, पूजा का कुछ ज्ञान नहीं है। मंदिर की छत देख रही है, माँ बढ़कर चुटकी लेती है। चुपके चुपके हंस देती है, हंसना रोना उसका मजहब, उसको पूजा से क्या मतलब। हंसना रोना उसका मजहब, उसको पूजा से क्या मतलब। खुद तो आई है मंदिर में, मन उसका है गुड़िया घर। अब लेकिन जब ये नन्ही पुजारी बड़ी, इस तरह का एक हाल हमारे शायर इब्न इंशा का हुआ है, तो मैं उनकी एक नज़्म आपके सामने पेश कर रही हूँ। और चूँकि 20वीं सदी का शायर है ना, तो साफ लफ्ज़ों में ही अपनी महबूब से कहता है कि तू कहाँ चली गई। और यही इस नज़्म का उन्वान है कि तू कहाँ चली गई थी। ठीक है। तू कहाँ चली गई थी, तेरा बेकरार इंशा, तेरी जुस्तजू में हैरान, तेरी याद में परेशान। कभी बस्तियों बनों में, कभी सूए को हो सहरा, तुझे ढूंढ ढूंढ हारा, तुझे हर जगह पुकारा। तू कहाँ चली गई थी, तू कहाँ चली गई थी। कभी शोरिशों में खोया, कभी बेकसा न तन्हा, लिए दीद की तमन्ना, बना आरज़ू सरापा। तू के रूह जिंदगी थी, तू कहाँ चली गई थी। तू के रूह जिंदगी थी, तू कहाँ चली गई थी। और मेरी हैरतों की रोमा, मेरी हसरतों की दिल्ली। मेरी हैरतों की रोमा, मेरी हसरतों की दिल्ली। मेरी वहशतों का सहरा, मेरी बलदाए जवान, मेरी बलदाए कराची। मुझे और कौन जाने, यही दे तो दे गवाही। मुझे और कौन जाने, यही दे तो दे गवाही। हसीन सूरतों से यहाँ हर गली भरी थी। हसीन सूरतों से यहाँ हर गली भरी थी। तेरा हसीन सूरतों से यहाँ हर गली भरी थी। मगर एक ये दीवाना, तेरा वैश ये यगाना, जैसे जिंदगी गवारा। कभी छोड़ के गया है तेरा आस्था पुराना, जहाँ अव्वले जवानी तू से मिली थी, तू कहाँ चली गई थी। और कभी सावनों से पूछूं, था जो हाल मौसमों का, था जो हाल जो हाल वहशतों का। कभी यास के जुलू में, कभी आस के जुलू में,
कभी आस के जुलूम में, कभी आस के जुलूम में, न वो महफिल रगाना, न कभी कहाँ न जाना, पर सात सागरों के जहाँ लोग हैं अनोखे, है ना, वहीं कहीं गई होगी। पर सात सागरों के जहाँ लोग हैं अनोखे, हमें जी से यूं बिसारा, हमें याद से बिसारा, यहाँ भूल कर भी जानी न मिलन हुआ गवारा, यहाँ भूल कर भी जानी न मिलन हुआ गवारा। ये जो माह साल गुजरे अजीब हाल गुजरे, है ना, ये माह, ये दिन और रात जो गुजरे, ये महीने जो गुजरे हैं, ये माह साल गुजरे अजीब हाल गुजरे। तुझे याद तो दिलाएं, तुझे याद भी तो आए, तुझे याद तो दिलाएं, तुझे याद भी तो आए, वो अहद जो किए थे, वो हमें कौल जो दिए थे। तुझे याद तो दिलाएं, तुझे याद भी तो आए, वो अहद जो किए थे, हमें कौल जो दिए थे। कभी कांपते लबों से, कभी अश्क की जुबां से, कभी कांपते लबों से, कभी अश्क की जुबां से, किसी गुंज गुलसिता में, किसी कुएं रहरवा में, और किसी दोस्त के मकाम में। और ये आखिरी बंद है कि तेरी जिंदगी सलामत मगर एक रोज जानी, बहुत खूबसूरत है। तेरी जिंदगी सलामत मगर एक रोज जानी, तेरा साथ छोड़ देगी तेरी बेअमा जवानी। तेरी जिंदगी सलामत मगर एक रोज जानी, तेरा साथ छोड़ देगी तेरी बेअमा जवानी, तेरा रूप छीन लेगी मोह साल की गिरानी। जब महीने और साल और गुजर जाएंगे ना, तब सब खत्म हो जाएगा। तेरा रूप छीन लेगी मोह साल की गिरानी। तेरी गेसुओं की चांदी बजुबान बेजुबानी, ये सुनाएगी कहानी ढली शाम जिंदगानी। तेरी गेसुओं की चांदी बजुबान बेजुबानी, ये सुनाएगी कहानी ढली शाम जिंदगानी। तो ये बेवफा जमाना तेरे जी पे बार होगा, तो ये बेवफा जमाना तेरे जी पे बार होगा, न वफा, तो ये बेवफा जमाना तेरे जी पे बार होगा, न जवान महफिलों में तेरा इंतजार होगा, मगर एक ये दीवाना तेरा वहशी ये यगाना, जिसे जिंदगी गवारा। तुझे ढूंढता मिलेगा, तुझे जुस्तजू जो होगी, तुझे ढूंढता मिलेगा, तुझे जुस्तजू जो होगी। कभी बस्तियों वनों में, कभी सूए कोह सहरा, यूं ही शोरिशों में खोया, यूं ही बेकसाना तन्हा, हमें आशिकी निभाता ये उदास गीत गाता। मेरी जिंदगी की रानी, मेरी हासिले जवानी, तू कहाँ चली गई थी, तू कहाँ चली गई। लेकिन ये दीवाने जो है ना, ये सब कहने को दीवाने हैं, बल्कि ये लोग बड़े फरजाने होते हैं, बड़े अक्लमंद होते हैं। ये दुनिया को दीवाना ना करने की कोशिश, खुद बताते हैं कि दीवाना है, मगर वो असल में दीवाने नहीं होते हैं। एक शेर में मुलाजा हो कि दीवाने की ये बात बड़ी बात है प्यारे, दीवाने की ये बात बड़ी बात है प्यारे, सब पूछे हैं पर वो तेरा नाम न ले है ना। अब ऐसे को कौन दीवाना कहेगा, अक्लमंदी है ना कि अपने महबूब की इज्जत को बचा रहा है। सब पूछे हैं पर वो तेरा नाम न ले है। ये इकबाल अजीम का शेर है और बहुत अच्छी गज़ल है। अगर इजाज़त हो तो उसके 2-4 शेर पेश करूं। वो कहते हैं कि हम प्यासों के मैखाने में यूं जाम चले हैं, हम प्यासों के मैखाने में यूं जाम चले हैं, आँखों से छलक जाए है जब शाम ढले। हम प्यासों के मैखाने में यूं जाम चले हैं, आँखों से छलक जाए है जब शाम जले है। और दीवाने के हाथों में ये मिट्टी है कहाँ की, दीवाने के हाथों में ये मिट्टी है कहाँ की, चूमे है कभी और कभी माथे से मले है। दीवाने के हाथों में ये मिट्टी है कहाँ की, चूमे है कभी और कभी माथे से मले है। और दीवाने की ये बात बड़ी बात है प्यारे, सब पूछे हैं पर वो तेरा नाम न ले है, सब पूछे। और ये आखिरी शेर है और बहुत ही खूबसूरत है, ख़ास तौर से हुस्न वाले इस तरफ ध्यान दें कि चमके तो है सूरज की तरह हुस्न तुम्हारा, चमके तो है सूरज की तरह हुस्न तुम्हारा, लेकिन ये समझ रखियो कि सूरज भी ढले है। चमके तो है सूरज की तरह हुस्न तुम्हारा, लेकिन ये समझ रखियो कि सूरज भी ढले है। हम प्यासों के मैखाने में यूं जाम चले हैं, आँखों से छलक जाए है जब शाम ढले।
इकबाल अजीम भी बहुत ही बेहतरीन शायर हुआ है, लेकिन इनका कलाम ज़्यादातर पढ़ा नहीं गया है। हमने एक प्रोग्राम किया है, कभी इंशाल्लाह आप सबको भेजेंगे। आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, तो मैं वो नज़्म पेश करती हूँ। इस नज़्म का उन्वान ही अभी तो मैं जवान हूँ, है ना। मलिका पुखराज ने पढ़ी और बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ी, आपको याद होगा। मैं तहतुल नज़्म आपको सुना रही हूँ। कल इन लोगों ने याद दिलाई हमको, है ना, यही पता नहीं जवान लोग कुछ कह रहे थे तो हमको ये याद आ गया, तो मैंने सोचा आज को फिर सुना दिया। तो नज़्म है। हवा भी खुशगवार है, गुलों पे भी निखार है, तरन्नुमे बहार है, तरन्नुमे बहार है, बहार तरन नहीं, हवा भी खुशगवार है, गुलों पे भी निखार है, बहार पुर बहार है, कहाँ चला है साकिया, इधर तो लौट इधर तो आ। अरे ये देखता है क्या, उठा सुबह सुबह उठा, सुबह उठा के प्याला भर के दे इधर। चमन की सिमत कर नजर समा तो देख बेखबर, ये काली काली बदलियां उफक पे हो गई आया। ये एक हुजूम में मैं कशा के सूए मैं कदे रवा, ये क्या गुमा है बदगुमा, समझना मुझको ना तमा। ख्याल ज़ोहद अभी कहाँ, अभी तो मैं। हवा भी खुशगवार है, गुलों पे भी निखार है, तरन्नुमे हजार है, बहार पुर बहार है, कहाँ चला है साकिया, इधर तो लौट इधर तो आ। अरे ये देखता है क्या, उठा सुबह सुबह उठा, सुबह उठा के प्याला भर के दे इधर। चमन की सिमत कर नजर समा तो देख बेखबर, ये काली काली बदलियां उफक पे हो गई आया। वो एक हुजूम में मैं कशा के सूए मैं कदे रवा, ये क्या गुमा है बदगुमा, समझना मुझको ना तमा। ख्याल ज़ोहद अभी कहाँ, अभी तो मैं जवान हूँ। और जुनून है सवाब का, ख्याल है अजाब का। ठीक है ना सादिक भाई। जुनून है सवाब का, ख्याल है अजाब का, मगर सुनो तो शेख जी अजीब शे हैं आप भी, भला शबाब आशिकी अलग हुए भी हैं कभी। मगर सुनो तो शेख जी अजीब शे हैं आप भी, भला शबाब आशिकी अलग हुए भी हैं कभी। हसीन जलवा रेज हो, अदाएं फितना खैज हो, हसीन जलवा रेज हो, अदाएं फितना खैज हो, हवाएं इत्र बेज हो, तो शौक क्यों न तेज हो। निगार हाय फितनगर, कोई इधर कोई उधर उभारता हो ऐश पर, तो क्या करे कोई बशर। निगार हाय फितनगर, कोई इधर कोई उधर उभारता हो ऐश पर, तो क्या करे कोई बशर। चलो जी किस्सा मुख्तसर, तुम्हारा नुक्ता-ए नज़र दुरुस्त हो तो हो, मगर तुम्हारी ओपिनियन ठीक है तो हो, तुम्हारा नुक्ता-ए नज़र दुरुस्त हो तो हो, मगर अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। और ये आखिरी बंद है कि ये गश्त को हसार की, ये सैर जुए बार की, ये गश्त को हसार की, ये सैर जुए बार की, ये बुलबुलों के चहचहे, ये गुल रुखों के कह कहे। किसी से मेल हो गया तरन जो फिक्र खो गया, इधर जो वक्त सो गया, ये हंस गया वो रो गया। ये इश्क की कहानियाँ, ये रस भरी जवानियाँ, उधर से मेहरबानियाँ इधर से लंतरानियाँ। ये गश्त को हसार की, ये सैर जुए बार की, ये बुलबुलों के चहचहे, ये गुल रुखों के कह कहे। किसी से मेल हो गया तरन जो फिक्र खो गया, इधर जो वक्त सो गया, ये हंस गया वो रो गया। ये इश्क की कहानियाँ, ये रस भरी जवानियाँ, उधर से मेहरबानियाँ इधर से लंतरानियाँ। ये आसमान ये ज़मीन नज़ारा हाय दिल नशी, इन्हें हयात आपनी में छोड़ भला मैं छोड़ दूँ यूँ ही। ये आसमान ये ज़मीन नज़ारा हाय दिल नशी, इन्हें हयात आफरी भला मैं छोड़ दूँ यूँ ही। है मौत इस कदर करीब मुझे न आएगा यकीन, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो मैं। सादिक नूर से गुजारिश करती हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। और सादिक भाई की तालीम और परवरिश गुजरात में ही हुई है। आप रेडियो से जुड़े हुए हैं और उर्दू के लिए बहुत कुछ काम करते हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे बताई, मुझे अच्छी तरह से सब याद नहीं, तो मैंने सोचा कलाम सुनना है तो आज सादिक भाई का कलाम सुनेंगे। लेकिन ये बहुत काम करते हैं, उर्दू की खातिर से भी बहुत करते हैं, और भी सबन आप ट्रेन भी करते हैं लोगों को, और शायद भी बहुत अच्छे कहते हैं। आपकी एक किताब नदी का घर
तैयार है, लेकिन मसरूफियत खुद इतनी ज़्यादा है कि वो किताब शाये नहीं हो पा रही है। तो मेरे ख्याल से हम सब स्टूडेंट्स और हम सब मिलके इनकी थोड़ी मदद करेंगे और इनकी किताब शाये करवा देंगे, ठीक है। तो सादिक वैसे गुजारिश है कि आएँ और अपना कलाम पढ़े। ये इनका अपना कलाम है, हमने जो पढ़ा था वो औरों का कलाम था, लेकिन ये आपने अपना कलाम पढ़ा। कंग्रेचुलेशन टू ऑल दीज बॉयज़ एंड गर्ल्स। मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों के लिए दिल से तालियां एक बार बजाइए, दिल से। मैं मुबारकबाद सबसे पहले देना चाहता हूँ अपना कलाम पढ़ने से पहले हमीदा बानू को और इनके साथ जो रीटा काम कर रही हैं हमारी दोस्त, और इन बच्चों को। आपने देखा होगा कि आजकल जो गज़ल के प्रोग्राम होते हैं और महफिलें होती हैं, लेकिन जिन उस्तादों से उर्दू है, ऐसे लोगों का कलाम कहीं सुनाई नहीं देता। और आज यहाँ पर इस महफिल में आप देखिए कि ज़ौक़, चकबस्त, इक़बाल, कैसे कैसे उस्तादों का कलाम यहाँ पर पढ़ा गया। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये बहुत बहुत अहम बात है कि बच्चों, आप लोगों ने जिन लोगों का कलाम पढ़ा है, जिन शायरों का कलाम पढ़ा है, उन्हीं से विरासत में हमें ये उर्दू मिली है। और आज इत्तेफाक से हम लोग यहाँ पर हेरिटेज वीक भी मना रहे हैं। तो ये जो विरसा है वो इमारतों का, कंकर पत्थर का ही नहीं होता। ये विरसा, ये हेरिटेज ख़यालात का होता है, विचारों का होता है, ज़बानों का होता है, रिलेशनशिप का होता है। तो रिलेशनशिप ज़बान से, रिलेशनशिप इंसानों से, इसका जो हमें विरसा मिला है, हमें बहुत खुशी है कि आने वाली ये नस्ल उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे महफूज करने के लिए तैयार है। और हमें ये यकीन होना चाहिए कि हमारा विरसा इन मजबूत हाथों में सलामत है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ पूरी इंस्टीट्यूट को कि आपने यहाँ ये इवेंट रख के ये साबित कर दिया कि हमारी नज़र और हमारा नज़रिया बहुत बड़ा है। बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं एक ट्रेनर भी हूँ और बहुत ख्याल रखता हूँ प्रोनाउंसिएशन के बारे में। तो यहाँ जिस खूबी से खूब बोला गया और गलत बोलने में कोई गलती नहीं हुई तो ये काफ और गैन और खे और जो आजकल पूरे मीडिया में छाया हुआ है फिर, ये आपने यहाँ पर उसको फिर कहा, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। रियली वंडरफुल, अमेजिंग। मैं यहाँ पर आपको, चूँकि हेरिटेज वीक चल रहा है, मैं सोच रहा था क्या पढ़ूँ, लेकिन मैं अपनी दो नज़में, क्योंकि नज़्म सुनने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन यहाँ ये जो ऑडियंस है, मैं समझता हूँ ये इस काबिल है कि मैं अपनी दो नज़में यहाँ पर पेश करने की जुर्रत करता हूँ। एक नज़्म में अहमदाबाद, चूँकि और अहमदाबाद में वो पुराना अहमदाबाद की जिसके आजकल वो वॉक करवाई जाती है और उसे दिखाया जाता है, वो इतना छोटा सा 12 दरवाज़ों के अंदर कैद अहमदाबाद, उस पर मेरी छोटी सी एक नज़्म थी जिससे पुराने लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि अहमदाबाद नज़्म मैं यहाँ पर पेश करूँ। शहर, आए मेरे प्यारे शहर, मुबारक हो तुझे आबाद होना, फूलना फलना, मुबारक हो तेरी तारीख़ का बनना संवरना, तारीख़ इतिहास, तेरी तारीख़ का बनना संवरना, मंदिरों और मस्जिदों की शान बनना, शंखनादों और अजानों की सदाएं मुबारक, मुबारक मिल की चिमनी से उठता वो धुआं, और फिर खामोश चीखें चिमनियों की। सारी मिलें बंद हो गईं। और फिर खामोश चीखें चिमनियों की, और फिर तेरा नए अंदाज से बनना संवरना, आसमां को चूमना,
आए मेरे प्यारे शहर, सुबह पानी, देखिए फ्लैशबैक, आए मेरे प्यारे शहर, सुबह पानी की कतारों में चहकती शोखियां, खनखनाती चूड़ियां, चाय की चुस्की से ताज़ा दम मोहल्ले, तेरी सड़कों पे गलियां और गलियां, गलियों में भी गलियां। अहमदाबाद में पोड़, तेरी सड़कों पे गलियां और गलियां, गलियों में भी गलियां, राम राम और दुआ सलाम, आवजो और केम छो के जमजमे, आवजो और केम छो के जमजमे, गले मिलती हुई खिड़कियां, सर जोड़े दरवाजे, गले मिलती हुई खिड़कियां, सर जोड़े दरवाजे, उन्हीं में एक दरवाज़ा मेरे घर का, उन्हीं में एक दरवाज़ा मेरे घर का, मैं अपने घर के दरवाजे से निकलकर, मैं अपने घर के दरवाजे से निकलकर ख्वाब कुछ बुनकर शाम होते लौट आता हूँ इसी दर पर, शाम होते होते लौट आता हूँ इसी दर पर, तेरे पत्थर के दरवाजे कहीं जाने नहीं देते, तेरे पत्थर के दरवाजे कहीं जाने नहीं देते, मगर तू 12 दरवाज़ों की अपनी कैद से आज़ाद, नई राहें मुबारक अहमदाबाद, नई राहें मुबारक अहमदाबाद। तो ये वो पुराने शहर के रहने वालों का एक दर्द है जो डेवलपमेंट के नाम पे जो उभरता हुआ अहमदाबाद है, उसको मुबारकबाद दिया। एक और नज़्म मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगा, मैंने ये नज़्म पिछली बार शायद कच्छ में पढ़ी थी, एंड आई डेडिकेट दिस पोएम टू आवर हेरिटेज। धोलावीरा का नाम आपने सुना होगा। धोलावीरा यहाँ पर ये कच्छ की जो हमारी सरहद है, वहाँ एक सरहदी शहर उसे हम कह सकते हैं, जो एक्सकेवेशन में अभी मिला है और ज़मीन के अंदर दबा हुआ, और मोहनजोदड़ो की जो संस्कृति है उसी से जुड़ा हुआ है। तो देखिए कि इशारा है इसमें, सरहद शब्द आप ध्यान में रखें जो पहले नहीं थी, तो वो एक इशारा है इसमें। और जब मैं वहाँ गया था तो वहाँ का जो केयर टेकर है, जिसे हम चौकीदार कहते हैं, तो उसने हमें ये पूरी जो जगह बताई। मैंने आई डेडिकेटेड दिस टू दैट केयर टेकर जयमल, और इसका शीर्षक रखा है जयमल चौकीदार, जयमल चौकीदार। जयमल, तुम धोलावीरा के खंडर के रखवाले, जयमल तुम धोलावीरा के खंडर के रखवाले, रखवाले इन टीलों के जिनके नीचे अजदाद पूर्वज, जिनके नीचे अजदाद तुम्हारे और हमारे दफन हुए हैं अपनी तहजीबें लेकर, दफन हुए अपने घर की दीवारों में, दरवाज़ों में, दालानों में, दफन हुए अपनी तहजीबें लेकर, संस्कृतियाँ, दफन हुए अपने घर की दीवारों में, दरवाज़ों में, दालानों में। जयमल, तुम जब बोल रहे हो सदियों के पट खोल रहे हो, जब बोल रहे हो सदियों के पट खोल रहे हो, इन टीलों में दबे हुए महलों के दरवाजे खोल रहे हो, इन टीलों में दबे हुए महलों के दरवाजे खोल रहे हो। जयमल, तुम बोल रहे हो संजय के मानिंद, महाभारत का संजय, तुम बोल रहे हो संजय के मानिंद, संजय की तरह अपने अजदाद की तहजीबों की बातें, पानी की किल्लत से लड़ने की बातें, मैदानों में खेल कूद के किस्से, आरामों आसाइश के गोशे, दिलचस्पी के सामान, 7 युगों की परतों के नीचे दबे हुए इंसानों के अरमान। धोलावीरा के मुर्दा टीलों के नीचे सब कुछ जिंदा है, पाइंदा है, सब कुछ जिंदा है। देखिए, 2 शब्द जो हैं, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा जाता है, पाकिस्तान में पाकिस्तान पाइंदाबाद कहा जाता है। पाइंदा फॉरएवर, हमेशा रहने वाला, सब कुछ जिंदा है। धोलावीरा के मुर्दा टीलों के नीचे सब कुछ जिंदा है, पाइंदा है। दीवारों पर क्या जिंदा है? दीवारों पर सजे हुए औजार,
आंगन में चक्की की घन घन, दालानों में चूड़ी और पायल की खन खन, मिट्टी की गाड़ी, गुड़ियाएं, बर्तन, हौज में हाथी डूबे इतना पानी, बैलगाड़ियों के छक्कड़ में धन धानी, बाजारों में तू में, तीर कमानों के तोहफे, खुशियों के फव्वारे, 7 युगों की परतों के नीचे सब कुछ जिंदा है, पाइंदा है, सब कुछ जिंदा है, पाइंदा है। जयमल, तुम सच कहते हो, तुम सच कहते हो। धोलावीरा के टीलों के पीछे दूर कहीं मौजूदा सरहद के नीचे, दूर, वहां से सरहद 100 किलोमीटर है, दूर कहीं मौजूदा सरहद के नीचे आर्याई तहजीबों के आसार, आर्याई तहजीबों के आसार इसी तरह जिंदा हैं, पाइंदा हैं। धोलावीरा तक शाहराहों से जुड़े हुए हैं। शाहराह राजमार्ग, एक्सप्रेसवे। धोलावीरा तक शाहराहों से जुड़े हुए हैं, दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। ऐ धोलावीरा की रखवाले जयमल, मैं खुश हूं कि तुम जिंदा हो। इन टीलों के नीचे दबे हुए किस्से कहने को तुम जिंदा हो। तुम जिंदा रहना, वरना मेरी औलादों को कौन बताएगा अपनी तहजीबों के राज। तुम जिंदा रहना जयमल चौकीदार, तुम जिंदा